Okay, so we will start with these two poems of Robert Frost. Very short poems of Bachapati. Robert Frost was basically an American poet, and he has written these two poems. More or less, these two poems are actually connected with nature. Okay, पहला वाला है आपका भाई साहब Dust of Snow, and the second part is basically your Dust of Snow, and the second part is Fire and Ice. Okay, so what is Dust of Snow? In Dust of Snow is actually talking about our depression, our demotivation. In times it's very in our life it's very obvious that at times we might feel depressed, we might feel dejected, we might feel neglected for whatever reasons. We are not happy with life. Okay, the only suggestion as per Robert Frost is that nature has the healing powers. So he has basically represented, and no matter how ill or ominous we have declared nature, the same elements will actually heal you. तो इन्होंने क्या किया है, इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो में एक हेमलॉक ट्री पे एक क्रो को बैठाया है, और नीचे से एक इंसान है जो जा रहा है और स्नोफॉल हो रहा है। स्नो तो क्रो के ऊपर भी थोड़ा बहुत स्नो गिरा है, तो उस क्रो ने थोड़ा सा अपना पंख को झटका और वो स्नो ऐसे शावर की तरह इस इंसान के ऊपर गिरा, बट इट एनलाइटेंड हिज मूड। ठीक है, ही बिकेम हैप्पी। ओके, नेचर इज शावरिंग दिस स्नो ऑन मी। ठीक है, ही बिकेम हैप्पी। तो बिटर कोल्ड है, कोल्ड मतलब आपके अंदर बहुत ठंड है, तो ठंड के समय पे आपके शरीर में काफी जगह पे दर्द होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लस आपका हेमलॉक ट्री है, प्लस आपका क्रो है। ऑल दीज आर बेसिकली पेनफुल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, और regarded as ill or ominous. ठीक है, लेकिन apart from all this he got healed. So the takeaway is that no matter how depressed, dejected, or miserable you feel, nature has got healing powers to again enlighten your mood. Okay, the second poem is about Fire and Ice, in which he has actually contemplated on how the world is going to end, whether the world is going to end in fire or whether the world is going to end in ice. What he means here is that fire and ice both are destructive. If let's suppose this entire world turns into ice, we will all perish, we will all die. If this entire world turns into ice, we will all perish, we will all die, fire or ice. But actually fire is here representing desire, and ice is here representing conflict. Okay, fire is basically representing desire and ice is representing conflict. So ice basically क्या represent कर रहा है आपका hate. Okay, so ice is representing hate. So according to Robert Frost, both are strong enough to put an end to the world, and that is what is happening. Okay, so we will end either because of our own desires or because of the hatred that we have towards each other. So desires means we are not stopping. Okay, man is basically a bunch of unsatisfactory wants. See, if you see a tiger, once its stomach is filled, even if the prey or even if a bunch of cows is going in front of it, it will not attack. But we as human beings will not do that. Even if everything is fulfilled in our life, we will always have that intention to acquire more and more and more. Okay. So this desire of acquiring more and more, if let's say we are fulfilled with property, then we'll look for vehicles. If we are fulfilled with vehicles, then we will look for vacations. Okay. If we are fulfilled with vacations, then we will look for our children's education. So one after the other, there is just no limit or end to our wants and desires. It is continuous. Okay, and in order to basically fulfill all our desires, what is it that we use? Nature. And we are hardly bothered about the destruction that we are causing to nature day in and day out. And what is happening? Nature will rebound back. So obviously nature is going to rebound back with a stronger force. Okay, then we have hate, because so this is basically desire. Then we have hate. Hate means hate amongst each other. So till the time there was corona, the world was silent. We were contemplating as to how to deal with this disease. Meanwhile, people were losing their lives. But once corona ended, again you can see there were many wars that started. Russia-Ukraine war started. Then in the Middle East, war has started. So all these have started. We were waiting for this to over. We already hate ourselves in such an extent that again this. So in spite of seeing what a tremendous impact a disease had on us, in which so many people unnecessarily lost their lives, still we went into war after corona. ठीक है, फिर भी हम भाई साहब इतना नहीं देखे कि अरे इतना इतना बड़ा मौत का तांडव चला। आप लोग उस टाइम पे न्यूज देखते ही होंगे, कितनी ज्यादा जगहों पे लाशें ऐसी एक साथ जलाई जा रही। लाशें जलाने की जगह नहीं थी कोरोना में।
इतने लोग मारे गए, ठीक है, बट स्टिल वी डिडंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम। जैसे ही वो ओवर हुआ भाई साहब, हमने फिर अपनी लड़ाई चालू कर दी, इसमें भी लोग मर रहे हैं, ठीक है। So that is how it is. The speaker weighs these two powerful emotions, suggesting that either could be the cause of our demise, with a tone of both resignation and profound insight. So Robert Frost was an American poet. He was basically an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. तो इनका पहला, भले ही ये अमेरिकन पोएट थे, लेकिन इनका पहला काम जो है वो पब्लिश हुआ कहां पे, इंग्लैंड में, एंड देन इन अमेरिका। ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। काफी रूरल लाइफ से ही कनेक्टेड है, गांव गांव के एनवायरमेंट से काफी कनेक्टेड है। एंड इज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोलिक्वल स्पीच। तो मतलब आप बोल कुछ और है लेकिन मीन कुछ और कर रहे हैं, ब्राइडर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। Frost was honored with frequently during his lifetime for 4 Pulitzer Prizes. ये Pulitzer Prizes are one of the highest prizes that can be awarded to a writer. So not one or two, but he got Pulitzer Prize 4 times for his poetry alone. And his poetries are very short, okay, not very lengthy. So this is the entire poetry. ठीक है, 8 लाइन की एक पोट्री है, ठीक है। Dust of snow, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, ठीक है। तो एक राइटर जा रहा है, द नरेटर इज बेसिकली गोइंग, इट इज अ स्नो क्लैड एनवायरमेंट, एंड ऑन टॉप ऑफ अ हेमलॉक ट्री देयर इज अ क्रो, और इस क्रो ने अपने पंख में से जो थोड़ा स्नो गिरा था उसका, वो ऐसे झाड़ दिया इसने। पक्षी लोग झाड़ते हैं ना, मतलब जब आप देखोगे कि जब वो भीग जाते हैं, देन ऑल्सो ये ऐसे ऐसे करते हैं वैसे, तो आप उनका पानी उतर जाए, वैसे ही ये जो पक्षी के ऊपर, ये क्रो के ऊपर जो थोड़ा सा स्नो था, इसने झाड़ा, और ये झाड़ा तो इसके ऊपर गिरा। Has given my heart a change of mood, so my mood suddenly changed. It means that before this I was depressed, dejected, or not happy with life, or sad, or miserable for whatever reasons, okay, and saved some part of a day I had ruled, ठीक है। तो मेरा जो पूरा दिन खराब जा रहा था और मेरी जो सोच खराब हो गई थी, उसको इसने बचा लिया, ठीक है, बाकी का दिन इसने बचा लिया। एक सिंपल सा एक्ट था नेचर का कि मेरा बाकी का दिन बच गया, ठीक है। Now we will look at the explanation. We will look at the poetic devices used. So this poem captures a fleeting yet profound movement. Okay, moment. Sorry. The narrator engulfed in melancholy. Melancholy मतलब क्या होता है? Sadness. So the narrator is engulfed in melancholy. कोई कोई रीजन है जिसके वजह से वो दुखी है, ठीक है। किसी से धोखा मिला है, या कोई परिवार में अस्वस्थ है, या खुद ही वो अस्वस्थ है, या कोई काम नहीं बन रहा है काफी प्रयासों के बाद, तमाम रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सिट्स अंडर अ हेमलॉक ट्री अमिड्स द विंटर स्नो, सो इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री अमिड्स द विंटर स्नो। अ क्रो पर्च्ड ऑन द सेम ट्री डिसलॉजेस स्नो फ्लेक्स, तो ये ऐसे ऐसे झाड़ता है और स्नो फ्लेक्स ऐसे गिरते हैं उसके ऊपर, दैट फॉल ऑन टू द पोएट राउजिंग हिम फ्रॉम हिज रिफ्लेक्टिव स्टेट। तो ये पहले तो दुखी था, फिर ऐसे जाग गया, ठीक है। दिस माइनर इवेंट, एक छोटा सा इवेंट है भाई साहब, छोटा सा इवेंट, ठीक है, shifts his attention to the world around him, altering his outlook. तो ये अपने ही दुख में ग्रस्त था, अपने ही सैडनेस में ये एकदम ग्रिप्ट था, और this snowflakes which were showered on him by this crow which was sitting on the hemlock tree suddenly aroused him to the world, okay, and he became aligned with the world, okay. So that is the explanation. He realizes the futility of his sadness. तो ये जो सैडनेस है, इनको समझ में आ गया कि यार sadness, happiness is a part of a life, ठीक है, and decides to spend the rest of his day engaging in meaningful activities. तो यार कुछ करना है, कुछ करके हम अभी sadness की वजह से रुक तो नहीं सकते, तो let's do some meaningful activities, let's go on with whatever I was trying to do, ठीक है। This epiphany transforms his mood. This epiphany transforms his mood, infusing him with optimism. Optimism मतलब समझते हैं, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दो चीजें होती हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हर चीज का पॉजिटिव ही देखना, पेसिमिस्टिक मतलब हर चीज का नेगेटिव देखना, दोनों ही जरूरी है। देखो ऑप्टिमिज्म है तो हमने एयरलाइन इन्वेंट किया, हाँ हमको आसमान में उड़ना है, लेकिन किसी पेसिमिस्टिक ने सोचा यार अगर गिर गए तो उसने पैराशूट इन्वेंट किया, है ना। सो बोथ आर रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमिज्म ही सिर्फ रिक्वायर्ड है, बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो कोई पेसिमिस्ट था तो देखा कि यार चलो ये तो हो गया, लेकिन अगर गिरे तो इसका क्या करेंगे, तो किसी पेसिमिस्ट ने ऐसा सोचा कि यार वी नीड टू हैव अ we need to have a parachute. So the gentle snowfall cleans his despair, cleans his despair. जैसे optimism क्या है,
ऑप्टिमिज्म मतलब हम कुछ सोच रहे हैं तो हम लिखेंगे, तो हमने पेपर इन्वेंट किया, हमने पेन इन्वेंट किया, पेंसिल इन्वेंट किया, लेकिन लिखने में अगर गलती हो गई तो इसके लिए इरेजर इन्वेंट हुआ, है ना? सो बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है? The gentle snowfall cleanses his despair, filling his heart with joy and motivating him to approach the rest of the day with a positive and constructive attitude. So this changes him completely. यार जो हुआ हुआ, ठीक है? This is good यार, वाओ, शावर गिरा मेरे ऊपर, ठीक है? नेचर ने मेरे ऊपर शावर किया, ठीक है? So he became positive and he said that जो हुआ हुआ, now I am going to spend the rest of the day of my life in a positive attitude, ठीक है? And do my remaining work, whatever work is there. ओके, अभी हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की, क्या क्या डिवाइसेस यूज हुए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फॉस। तो पहला है आपका ऑलिटरेशन। ऑलिटरेशन मतलब क्या है? इज द रेपिटेशन ऑफ सम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स, ठीक है? तो एक के बाद एक या एक के बाद ऐसे एक आजू बाजू के वर्ड्स में एक कॉन्सोनेंट साउंड उभर कर आता है, उसको हम बोलते हैं ऑलिटरेशन, ठीक है? देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड which is predominantly coming in from neighboring words, and that figure of speech is known as alliteration. So alliteration is the repetition of some consonant sounds in the nearby words. So alliteration for dust of snow has given my heart, देखो अभी देखो यहाँ पे has h sound आ रहा है, ठीक है? has given my heart, ठीक है? ये आपका पे देखो has heart, ठीक है? इस वाले लाइन में देखो has given my heart and saved some part, तो देखो s some part of my, तो saved some, ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए। ये जबरदस्ती क्रिएट किया जाता है पोएटिक इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है? सो saved some part of my day, क्लियर है? समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? सो दिस इज बेसिकली ऑल्टरेशन। व्हाट एल्स नाउ? सो आर वी क्लियर ऑफ दिस एंटायर पोएम? आर वी क्लियर ऑफ इट्स जिस्ट कि क्या है ये पोएम? एंड आर वी क्लियर ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड? सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दूसरे कविता पे अपन मूव करेंगे, which is also a very short poem but again a meaningful one, ठीक है? Fire and ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया की तबाही होगी या दुनिया जो खत्म होगा वो फायर में होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि इट विल एंड इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है? सो मैंने जो डिजायर से समझा है, क्योंकि देखो डिजायर को ये फायर के साथ, अच्छा एक चीज और मैं आपको बोलना भूल गया, इस वाले पोएम में आपका राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, ए बी, ठीक है? ये वाला बताओ, सी डी, सी डी, ठीक है? ऐसा है राइमिंग स्कीम, ठीक है? फ्री वर्ड्स में नहीं है, राइमिंग स्कीम है, ठीक है? सो फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मेरा मानना है कि अगर डिजायर के वजह से अगर ऑप्शन मिले कि वर्ल्ड का खात्मा किस तरह से करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा डिजायर में हूं, ठीक है? हालांकि खात्मा नहीं होना चाहिए और डिजायर को लिमिटेड रखना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है कि या तो फायर में या तो आपके आइस में, फायर मतलब डिजायर और आइस मतलब एक दूसरे के लिए हेट्रेड, तो ये बोल रहे हैं कि चलो यार फायर की वजह से खत्म हो, मतलब डिजायर की वजह से खत्म हो, बेटर ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है? He doesn't want destruction, but he's saying that if I get an option, then I would pick up desire, ठीक है? But if I had to perish twice, अगर मैं फिर से जिंदा हो गया, फिर से बच गया, ठीक है? I think I know enough of hate to say that for destruction, ice, it was also great and would suffice, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि यार हेट जिससे आइस को इन्होंने कंपेयर किया है, इससे भी खात्मा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों में खात्मा तो होना ही है। In both ways, it is going to end. ठीक है? In this poem, the author explores two potential scenarios for the end of the world. ठीक है? दो potential scenario को, मतलब ये जो दुनिया है उसका खत्म होने के सिनेरियो को इन्होंने बेसिकली एक्सप्लोर किया है, ठीक है? So in this poem, the author explores two potential scenarios for the end of the world: destruction by fire or ice. So one is by destruction by fire or by ice. ठीक है? Clear है? Okay. The poet acknowledges his familiarity with intense human emotions, which leads him to initial side with those who predict an end by fire. ठीक है? The poet acknowledges his familiarity. तो उसको मालूम है with intense human emotions
which leads him to initially side with those who predict an end by fire. तो पहले इन्होंने उस चीज का साइड लिया कि यार चलो अगर फायर में खत्म होता है, अगर डिजायर में वर्ल्ड खत्म होता है, तो मुझे शायद मालूम है ये कैसे खत्म होगा, क्योंकि आई सी डिजायर एवरीवेयर, आई सी डिजायर इन मी, आई सी डिजायर इन एवरीबडी अराउंड अस. Everybody is trying to acquire more and more for their lives, and in this struggle or in this race we are destructing a lot that is around us. ठीक है, so शायद मैं इस प्रोसेस से वाकिफ हूं. ठीक है, तो जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप किस तरह से फेल होना चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें से 30 फेल हो गए, तो उसमें से आप एक हैं, ये एक ऑप्शन दिया जाए. और अगर दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि 50 बच्चे हैं, 49 पास हो गए, आप ही एक फेल हो गए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे. क्यों? क्योंकि बाकी सब भी हो रहे हैं, है ना. लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप फेल हो रहे हैं, आप अगले क्लास में नहीं जा रहे हैं, आप नुकसान नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यार क्राउड के साथ हूं मैं, है ना. सो दिस इज लुकआउट एज वेल, क्योंकि इन्होंने देखा है कि कैसे मनुष्य अपने ग्रीड के वजह से अपना ही डिस्ट्रक्शन कर लेता है, because he has been a victim and he has seen this happening, so he says that the पहला वाला प्रोसेस शायद ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, that is his guess. Okay, however, upon further contemplation he considers that if the world were to perish twice मतलब अगर दूसरा मौका मिले अंत होने का, perish twice मतलब एक बार खत्म हो गया, फिर से एक दूसरा मौका मिल रहा है खत्म होने का. ठीक है, ओके, ice would be equally capable of causing devastation. आइस भी इक्वली केपेबल है पूरे पूरे को खत्म कर देने का. आइस क्या हो गया? अपने आप में एक हेट का फीलिंग. ठीक है, और इंसान ही एक मात्र ऐसी स्पीशी है. आपको मालूम है एवोल्यूशन कब से हुआ है? एवोल्यूशन मतलब अब इंसान कब बने जानवर से? सो दे से साइंटिस्ट से दैट दे हैव डिस्कवर्ड अ ममी. ममी मतलब समझते हैं, राइट? कंकाल. ठीक है, और उस कंकाल में उन्होंने देखा कि जो फेमूर बोन होता है हमारा, फेमूर थाई का बोन, ठीक है, वो जुड़ा है. और ये बहुत पहले की बात है जब जस्ट एवोल्यूशन हो रहा था. ठीक है, मतलब तब भी हम जानवर ही थे, जंगलों में ही रहते थे, बस्तियों में नहीं रहते थे. तो ऐसा फेमूर बोन जुड़ा है. ये तभी हो सकता है जब इस पेशेंट को किसी ने देखभाल किया हो. देखिए, जब आपका फ्रैक्चर होता है तो कैसा होता है? वो प्लास्टर करते हैं. ठीक है, प्लास्टर करके उसको सस्पेंड कर देते हैं, मतलब आपका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है तो आपकी हड्डियां खुद ही अपने आप में जोड़ लगाती है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, कोई बाहर से जोड़ नहीं लगाता. ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हड्डियां जुड़ जाती है. ठीक है, उस टाइम तक आपको उस हड्डी को नहीं हिलाना है, इसीलिए प्लास्टर होता है. ठीक है, बट देर इज सम केयर दैट हैज बीन टेकन. आप अगर भाई साहब इंजर्ड हुए हैं और आपका प्लास्टर लगा हुआ है, देन ऑब्वियसली आपके घर वाले आपको खाना खिला देंगे, आपका जो काम है वो कर देंगे. ये ऑब्वियसली होगा, आप भी किसी के लिए करेंगे. तो ये क्या है? ये कंपैशन वाला एटीट्यूड है. लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं पाया जाता भाई साहब. जानवर लोग बहुत रूथलेस होते हैं. आप देखेंगे किसी किसी कबूतर के बच्चे को अगर आपने हाथ लगा दिया ना, तो उसको डिजीज हो जाएगा. डिजीज हो जाएगा क्योंकि आप आप तो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वो नहीं है. तो आपके जितने भी डिजीज हैं जिससे आप इंपैक्ट नहीं हो रहे, वो हो जाएगा. समझ में आ रहा है? आप करोड़ों वायरसेस और बैक्टीरियाज आपके आजू बाजू रोज है, आपके हाथों में, पैरों में, शरीर में, सब जगह. बट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट बिकॉज यू हैव बीन वैक्सीनेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द डेडली डिजीजेस. दे हैव नॉट बीन. जैसे आप उनको हाथ लगाते हैं तो आपका जो वो उसमें चला जाता है. उस कबूतर के बच्चे को वो लोग उठाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, मरने के लिए छोड़ देंगे. दे विल नॉट पिक इट अप. ठीक है, ऐसा आप देखेंगे. आप डिस्कवरी चैनल वगैरह अगर आप देखते होंगे कभी कभी, बिग बॉस का कार्यक्रम छोड़कर अगर डिस्कवरी देख लिया आपने गलती से, या नेट जियो देख लिया, ऐसे उसमें आप देखेंगे कि कैसे झुंड में ना अगर कोई जानवर अपाहिज हो जाता है, उसकी टांगे टूट गई हैं या वो चल नहीं पा रहा है, पूरी झुंड उसको छोड़ देती है, उसके माता पिता तक. दे आर सो रूथलेस. ओनली एलिफेंट्स दे केयर अबाउट, बट अदरवाइज दे आर रूथलेस. ये बेकार है हमारे लिए, इसको मरने के लिए छोड़ देते हैं. लेट द अदर एनिमल्स ईट इट अप. ठीक है, ऐसा होता है. लेकिन हम कंपैशनेट हैं, इसीलिए ये जो लाश हमको मिली, इसकी हड्डियां जो मिली हमको, ये सजेस्ट करता है कि इस बंदे को किसी ने ट्रीटमेंट दिया था, इस बंदे को किसी ने देखभाल किया था. एंड दैट मार्क्स द एवोल्यूशन प्रोसेस. हम जैसे ही कंपैशनेट हो गए एक दूसरे के लिए, हमारे अंदर एक कंपैशन जागा. ठीक है, एक दर्द
दूसरे के दर्द को समझने का जो आपके अंदर एक सद्भावना जागी, उससे हमारा एवोल्यूशन हुआ। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एग्री ऑन। लेकिन अभी अगर आप इस चीज को देखेंगे तो उल्टा भी चल रहा है। जिस तरह से दूसरी प्रजातियां लड़ती हैं अपने आप में, हमारा लड़ाई कुछ अलग ही है ना। हमारी लड़ाई है भाई साहब पूरे देश को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर, कौम को लेकर, जाति को लेकर, रंग को लेकर, ठीक है। दूसरी प्रजातियां इन सब चीजों के लिए नहीं लड़ती। उनको दिखता है कि भाई मेरा खाना आना चाहिए, मेरे खाने का कोई हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, जो बहुत प्रैक्टिकल है। भाई मेरे को नेचर से खाना मिल रहा है, एक और आ गया तो भाई मेरे को कम मिल गया, मिलेगा, इसीलिए लड़ाई है, विच इज वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन हमारी लड़ाई, वो टीका लगा रहा है, ये टोपी पहन रहा है, वो भाई साहब चर्च जा रहा है, इसकी वजह से, ठीक है, विच इज मोस्ट इरेशनल, ठीक है, विच इज मोस्ट इरेशनल। तो हमारी लड़ाई का कोई वही नहीं है, देर इज जस्ट नो एंड टू इट, ठीक है। हमारी लड़ाई एकदम बकवास वाली लड़ाई है। अपॉन फर्दर तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये डेवेस्टेशन की बात कर रहे हैं जहां पे हम अपने आप से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ओके, फायर इज मेटाफोरिकली लिंक्ड टू अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। ऐसे डिजायर्स की बात कर रहे हैं, मेटाफर है ये, ठीक है, कंपैरिजन। अनकंट्रोल्ड डिजायर, जिन डिजायर्स का कोई कंट्रोल नहीं है, ग्रीड एंड लस्ट इन ह्यूमंस, ठीक है। दीज इनसैटिएबल इमोशंस लाइक फायर spread rapidly and consume individuals, leading to egotism, selfishness and cruelty. ये सब हो जाता है हमारे अंदर, ठीक है, ऑब्वियसली। तो मतलब एक बार आप जीवन के सारी चीजों को पा जाते हैं, और कैसे और हासिल करें, और इस और को हासिल करने के प्रोसेस में कभी कभी आप दूसरों को आप बहुत भारी नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट आइस रिप्रेजेंट्स द कोड। मैं अगर बोलूं कि मैं ना तुमको ऐसा एक नोट्स दे रहा हूं, इसको पढ़ लो भाई साहब, 90% कंफर्म, कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको एक ऐसा नोट्स दे रहा हूं, ये पढ़ लो भाई साहब 90, विल यू शेयर विद अदर्स? नहीं करोगे ना, ठीक है। व्हाई व्हाई वुड यू शेयर विद अदर्स, ठीक है। मेरे को मिले, दूसरे को क्यों मिले, ऐसा ही बोलेंगे ना हम, ठीक है। दैट इज आवर मेंटालिटी, हम शेयर करेंगे ही नहीं इस चीज को, ठीक है। आपको मालूम है एक कम्युनिटी है जिसको हम ज्यूस कम्युनिटी बोलते हैं, ज्यूस, ठीक है। हिटलर ने इनको बहुत बुरी तरह से, खैर वो सब में नहीं जा रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि ये ज्यूस की जो कम्युनिटी है वो बिजनेस कम्युनिटी है और बहुत प्रॉस्परस कम्युनिटी है, ठीक है, बहुत ही प्रॉस्परस कम्युनिटी है। ये प्रॉस्परस क्यों हुई है? कैथलिक्स लोग इनको बहुत पहले से ही हेट करते हैं क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं उनके बीच में। तो इनके दो चीजें हैं, एक तो इनको किसी भी काम में शर्म नहीं आता, इनको बोलोगे जूता सिलने को जूता सिलेंगे भाई साहब, चमड़े का काम करने बोलोगे चमड़े का काम करेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से किसी भी बिजनेस में काम करेंगे, कोई इनको काम से कोई परहेज नहीं है, कोई भी काम करने बोलो इनके लिए ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला तो ये एक है। और दूसरा, इनका एक बहुत पॉजिटिव चीज क्या है कि ये जब धंधा करते हैं और किसी धंधे में इनको फायदा होता है ना, तो और 10 लोगों को बुलाएंगे अपने कम्युनिटी से, भाई देख इसमें फायदा हो रहा है, तू भी कर ले। दैट इज वन रीजन व्हाई दे हैव एक्सपैंडेड ट्रेमेंडसली। हिटलर ने जो दहशत मचाया यूरोपियन कंट्रीज में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे ज्यूज जाकर, ज्यूज ने उनको छोड़, मतलब उन कंट्रीज से भागे वो, क्योंकि ज्यूज का जो कम्युनिटी है वो एंटी वॉर है, ज्यादा वॉर पे नहीं जाता है। उन्होंने वो कम्युनिटी छोड़ दी और भागे अपने कंट्रीज से और जाकर बसे इसराइल में। आज की तारीख में आप देखो, इसराइल ने सबके नाक में दम कर दिया। आप सोचिए, इतने जीनियस लोग हैं ये, दे आर सो ब्रेनी पीपल। और इनका इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि ये इसको बिलीव करते हैं कि अगर मुझे कोई सक्सेस स्ट्रीट मिला है तो आई विल शेयर विद अदर्स, ठीक है। दैट इज वन रीजन व्हाई दे आर एक्सपैंडिंग एज अ कम्युनिटी, दैट इज वन रीजन व्हाई दे आर एक्सपैंडिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट, इनका हो रहा है, ठीक है। जो हम अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, है ना। सो जैसा है वैसा है, ठीक है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट आइस रिप्रेजेंट्स द कोल्ड, हार्श एंड हेटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, whereas individuals become insensitive to the feelings and well-being of others, ठीक है। insensitive हो जाते हैं हम। The poet suggests that both these destructive forces are escalating quickly, indicating the end of the world could come from either fire or ice। दोनों भी वैसा फटाफट बढ़ रहे हैं, ये दोनों भी जो फोर्सेस हैं, फायर और आइस के, दोनों भी बढ़ रहे हैं। मतलब एक दूसरे की तरफ जो हमारा हेट्रेड है वो भी बढ़ रहा है और टू एक्वायर मोर एंड मोर, ये डिजायर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। The underlying message in this dominance of human emotions and their potential to create chaos and ruin, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब,
एक दिन सब खत्म हो जाए, फायर से हो, आइस से हो, या दोनों से हो, ठीक है। द पोएम सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल, ये हमको सावधान कर रहा है, आगाह कर रहा है। एम्फेसाइजेस द नीड फॉर ह्यूमंस टू रेगुलेट देयर इमोशंस टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बड़े बड़े मैसेकर, बहुत बड़े बड़े दुष्परिणामों से हमको बचाने के लिए ये पोएम हमको एक अलार्मिंग बेल की तरह अलर्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज अलर्टिंग अस। आर वी क्लियर? ओके। पोएटिक डिवाइसेस, क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? द एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम इज गिवन बिलो। असोनेंस, असोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन द सेम लाइन, सच एज, ठीक है, जैसे ओ साउंड हुआ है, आई होल्ड, दोज, हु, फेवर, तो आपका देखो ओ साउंड। जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑलिटरेशन, और अगर आपका वॉवल साउंड रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं असोनेंस, ठीक है। सो असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, ठीक है। ऑलिटरेशन, ऑलिटरेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दोज हु फेवर फायर, एफ साउंड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली ऑलिटरेशन। इमेजरी, इमेजरी यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस, ठीक है। तो हमारे पांच जो सेंसेस हैं, स्किन हो गया, आईज हो गई, नोज, ठीक है, देन वी हैव ईयर्स, ये सारे जितने भी सेंसेस हैं, टंग, ये सारे सेंसेस से जब जिन चीजों को परसीव करते हैं उसको अपन बोलते हैं इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज आइस इज ऑल्सो ग्रे, ठीक है। ये इमेजरी है बेसिकली, ठीक है। कोई बोल रहा है फायर से खत्म होगा, कोई बोल रहा है आइस से खत्म होगा, इट्स एन इमेजरी, ठीक है। Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings different from their literal meanings. Fire is the symbol of desires and ice symbolizes hatred. Similarly, green and gold are the symbol of beauty and happiness. ठीक है, तो ये symbols है। आपने फायर को किसके साथ सिंबलाइज किया है? डिजायर को फायर के साथ सिंबलाइज किया है, और आपने हेटेड को आइस के साथ, ठीक है। ग्रीन एंड गोल्ड आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। Anaphora, it refers to the repetition of a word or expression in the first part of some verses. For example, some say the world will end in fire, some say in ice. तो देखो ये anaphora है, some say, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं anaphora, ठीक है। So it refers to the repetition of a word or expression in the first part of some verses. तो एक के बाद एक वर्सेस में एक ही फ्रेज यूज हुआ है, some say, ठीक है, इसको हम बोलेंगे anaphora। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से आइडेंटिफाई करना। पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इन दिस पोएम, फायर एंड आइस आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, therefore the poet personifies fire and ice by giving them a mind which is capable of destroying almost anything, ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, ठीक है। सो फ्रॉम, तो इन्होंने वैसा इनको क्या दिया हुआ है? इमोशंस दे दिए हुए हैं। पोएट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम अ माइंड। माइंड में ही तो आपके डिजायर आते हैं, और माइंड में ही तो आपका हेट्रेड आता है, ठीक है। सो ही इज पर्सोनिफाइड फायर एंड आइस बाय गिविंग देम क्वालिटीज ऑफ माइंड व्हिच आर दोज ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। Okay, so who is the poem? Who is the poet of the poem Dust of Snow? So it is obviously Robert Frost. Okay, why does the poet call it dust of snow? Snow particles were too tiny. They come over him like dust. They felt like dust. He looked like dust. B, है ना? D, B ना? Okay, they came over him like dust. ठीक है, dust का shower हुआ। The poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rude? Ruined, held in regret, ruled or conquered. Held in regret, ठीक है, मतलब पछतावा हो रहा था उसको उस दिन पे, अरे यार ये कैसा दिन है, सब कुछ खराब ही चल रहा है, पता नहीं किसका मुंह देखकर उठाऊं, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ठीक है। तो he held in regret a day, ठीक है। Okay, he uplifted his mood. What uplifted his mood? Falling of snow on his shoulder. The crow, hemlock tree, all of the above. Falling of snow on his shoulder. What is the rhyming scheme of the poem? ये आप कर सकते हैं भाई साहब, A B C D B A B A, ठीक है, A B A B C D C D था ना, ठीक है, A B A B C D C D था। Okay, name the poetic device used in the line has given my heart, ठीक है। तो ये has और ये heart, तो ये क्या हो जाएगा? Alliteration, ठीक है, this will be alliteration.
What does dust of snow represent? The healing power of nature, the particles of snow, cool weather, none of the above. Healing power of nature, okay. What are the two negative creatures that frost has used as carriers of positivity? Hemlock tree and snow. ठीक है? अरे sorry, hemlock tree and crow होगा. Correct. Snow आपका negative नहीं है. Hemlock tree and crow. ठीक है? Okay. The crow and hemlock tree symbolize sorrow. Sorrow. They symbolize dukh. ठीक है? Who is the title of the poem? Who is the poet of the poem Fire and Ice? Again, it will be Robert Frost. What does the poet compare fire with? Hatred, desire. Okay, so it compares it with desire. Okay. What is the meaning of perish? Perish मतलब bloom, rise, die, glow. It is die. Die मतलब खत्म हो जाना. Perish मतलब खत्म हो जाना. ठीक है? What would suffice if the world were to perish twice? Ice, fire, hatred, both one and two. Both hatred. What would suffice? Ice, fire. अलग से किसमें एंड हो? आइस और हेट्रेड हम बोल सकते हैं. ठीक है? हेट्रेड. What would be better option to end the earth? Fire, ice, both are equally component? None. Both are equally component. ठीक है? Both are equally component. Okay. What is the rhyming scheme? Rhyming scheme आप चेक करके बता सकते हैं. Okay. Name the poetic device used in the line. I hold with those who favor fire. Assonance क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो hold, those who favor. ठीक है? So this is basically a vowel sound which is constantly getting repeated. अच्छा, ऑल्ट्रेशन भी है, राइट? तो आपका ऑल्ट्रेशन में जैसे W आ रहा है, ठीक है? सो ये भी होगा, ये भी होगा, सो इट विल बी बोथ. यस, इट विल बी बोथ. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. मेटाफर, इमेजरी, ऑलिटरेशन, ऑक्सीमोरॉन. ठीक है? इमेजरी. ओके ओके ओके. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट. मेटाफर, इमेजरी, ऑलिटरेशन, ऑक्सीमोरॉन. Imagery, okay. Where has he used personification? Fire, ice, earth, both 1 and 2. Both 1 and 2. ये fire और ice में ना personification. Okay, read the extract below. CBSE 2019 का सवाल है देखो. The way a crow and so and so. Name the poem and the poet. ठीक है? What is the name of the poem? Fire, sorry, अपना Dust of Snow by Robert Frost. What did the crow do to the hemlock tree? It was sitting on the hemlock tree. ठीक है? And it showered snow. What mood of the poet is conveyed here? Melancholy. हम बोल सकते हैं यहाँ पे melancholy और हम बोल सकते हैं sad mood. What did the crow and the hemlock symbolize? Sorrow. ठीक है? They symbolize sorrow. Okay? Rationalize what you think the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. 2019 का CBSE का question है. So the poet was lost in his old world, was feeling very depressed for whatever reasons, and all of a sudden the shower of snow fell on him. What does the presence of hemlock tree tell you about the setting of the poem? It gives us a setting that things are depressed, things are not going in the right way. ठीक है? Sorrowful scenario है ये. A simple moment proves to be very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. So the poet was passing by in a very melancholic mood or depressed mood. However, this crow which was sitting on a hemlock tree, when it dusted snow upon him, the shower of dust that fell upon him, it instantly uplifted his mood and made his day better. Okay? What is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow? Nature has healing powers. Okay? How has the poet absorbed nature in the poem Dust of Snow? So nature has healing powers. Nature can heal us at any point of time. Okay, read the extract given below and answer. How are ice and fire similar to each other, though they have contradictory traits? तो ice को हमने किसके साथ कंपेयर किया है? हेट्रेड के साथ. और फायर को किसके साथ कंपेयर किया है? डिजायर के साथ. Both have the powers to destruct the world. What is the poet's opinion of the world in these lines? पोएट का ओपिनियन क्या है? That the world is going to come to an end by either reasons of our excessive desires or our excessive hatred for each other. That's the reason he has compared the end of the world to either fire or ice. ठीक है? How are ice and fire similar to each other, though they have contradictory traits? Both are responsible for destruction. दोनों से डिस्ट्रक्शन होगा.
भले ही दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स है, बट दोनों से डिस्ट्रक्शन तय है, ठीक है. What is the poet's opinion of the world in these lines? तो these lines में मतलब the world is going to end in any of these reasons: excessive desire or excessive hatred, ठीक है. For Faust, what do fire and ice stand for? Desire and hatred. How has Faust brought out the contrasting ideas in the poem? ठीक है, contrasting ideas fire and ice को कैसे इन्होंने contemplate किया है? He has compared fire to our desires and hatred to our to ice, and he says that both are reasons sufficient enough to put an end to this world. Write down two different views about the end of the world. ये आप अपने आप से लिख सकते हैं भाई साहब. Two different views, fire and ice में. So the world is either going to end with our very never ending desires, or the world is going to end because of our constant hatred for each other. Okay. In the poem Dust of Snow, how does the poet's mood get changed by the shower of snow that happens? As a crow, you feel highly insulted by the incorrect perception humans have about your species. Imagine yourself to be a crow and write your opinion about this prejudice. Make an appeal for breaking stereotypes. So, as a crow, I am nature's curator. ऐसा बोल सकते हैं. As a crow, I feel that I clean most of the nature's, garbage, and I am an integral part of the nature. Without me, most of the garbage that you see around would not be clean, and hence it is absolutely irrational for humans to hate me, okay, and consider me as an ill omen. Imagine that Frost is present day and has been invited to write an teen talk. He chooses to draw up his experience with the crow and dusting of snow to share his thoughts on every cloud has a silver lining. As Frost, express your thoughts for the e-sign. इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट आए हुए हैं, तो एज अ फ्रॉस्ट यू आर एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज. सो ये आप बोलेंगे कि एज फ्रॉस्ट आई फील, मतलब एज फ्रॉस्ट नहीं, आई फील दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. मतलब हमारे सारे जितने भी वॉट एवर डिप्रेशंस और डिजेक्शंस और sorrows or miseries we have one way in which we can get ourselves treated, and that is to visit nature in solace. Okay, visit nature in solitude. Nature has great healing powers to heal us. इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है. Okay, the poet was sad and depressed, but one comical incident lifts his spirits. He is full of joy and happiness again. Based on your reading of the poem, write a paragraph. Happiness is relative. So happiness is relative. कभी आप हैप्पीनेस फील करते हैं, कभी आप सैडनेस फील करते हैं. इट इज ऑल रिलेटिव, ठीक है. रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली. अच्छा उसके पास वो है, मेरे पास तो नहीं है, हम दुखी हो गए. अच्छा मेरे पास है, उसके पास नहीं है, हम खुश हो गए, ठीक है. तो दैट इज द रीजन हाउ यू फील हैप्पी और सैड. तो योर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस इज ऑलवेज इन कंपैरिजन और रिलेटेड टू योर सराउंडिंग्स, ठीक है. सो दैट इज द रीजन यू फील हैप्पी. हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री? हाउ डज ही रिएक्ट? So the poet reacts very positively. ठीक है, मतलब although in humans crow and hemlock tree are considered as ominous, but he regards it very positively. ठीक है. Discuss how extreme behavior can hasten the end of the world with respect to fire and ice. Extreme behavior मतलब our extreme desires and our extreme hate uh, both can be resulting in the destruction of the world. Poem Fire and Ice carries with it very deep thematic ideas elaborate on these darker traits of humanity, मतलब extreme desires and extreme hatred. Poet represents two reasons which will lead to the destruction of humanity. What values do you garner from the two possible causes provided by him? Fire and ice, to desire and hatred. These are the two reasons for which it will end. That ends the chapter. Okay. Any questions, बच्चा पार्टी?